Hello students, it's Sanjay sir going to define the third poetry, that is keeping quiet. Before we start the explanation of this poetry, we shall know something about its writer, that is Pablo Neruda. It is a pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolto, who was born in town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. Okay, he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. This was something related to its writer Pablo Neruda. Now we will start the poem. Beta, before reading, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? है ना? ये टाइटल क्या सजेस्ट करता है आपको और क्या समझते हैं ये पोएम आपको बताएगा, है ना? किस बारे में आपको ये पोएम बताएगा? सो नाउ वी विल स्टार्ट इट. नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Beta, the poet urges each one of us to count up to 12 and to be quiet. बेटा ये जो पोएट है ना वो हम लोगों से अर्ज कर रहा है कि सभी लोग 1 से लेके 12 तक गिनो और उसके बाद चुप हो जाओ. The poet might have used the phrase count to 12 as there are 12 hours represented on a clock, or as there are 12 months in a year. He might have wanted the people to keep still as long as they could. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. In this way, there will be no language barrier between people, no harsh words will be spoken. In this moment of silence, the poet doesn't want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless. बेटा कभी हम लोगों से अर्ज कर रहा है कि हम लोग को 1 से लेके 12 तक गिनना चाहिए, उसके बाद चुप हो जाना चाहिए, है ना? ये चुप्पी कितने देर की है बेटा? ये एक फ्रेज़ हो सकता है. ये 12 महीने भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी हो सकते हैं, 12 साल भी हो सकते हैं. वो चाह रहा है हम सभी को कि कुछ देर चुप रह के अपना आत्म अवलोकन करें, है ना? ये चाहता है कि इस धरती पर एक क्षण ऐसा भी हो जब पूरी की पूरी शांति रहे, यानी कोई लैंग्वेज न बोली जाए, और अगर कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी तो लोगों के बीच में मनमुटाव नहीं होगा, है ना? कोई कर्कश भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो कोई विवाद नहीं होगा बेटा. और कभी ये नहीं चाहता कि कोई भी अपने हाथ को भी हिलाए. ही वॉन्ट्स अस टू रिमेन मोशनलेस. वो चाहता है कि हम लोग स्थिर रहें कुछ क्षणों के लिए, है ना? It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness.
बेटा, द पोएट फील्स दैट सच अ मोमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग वन। पोएट क्या सोचता है बेटा कि ये जो क्षण है, चुप्पी का जो क्षण है, ये बिल्कुल अनयूजुअल होगा, बहुत एक्साइटिंग वन होगा। इट विल हैव miraculous consequences. There will be no hurry or the sound of machines to pollute the atmosphere. It will be a strange and unfamiliar moment with a sinless all around. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. ठीक है, अब देखो ये चुप्पी का जो समय रहेगा वो बड़ा ही अनयूजुअल और एक्साइटिंग वन होगा बेटा। इट विल हैव मेरिकुलस कॉन्सिक्वेंसेस, और इसमें बहुत ही स्प्लेंडेड मेरिकुलस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बेटा, कैरिकुलम होगा। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन। जब बेटा पूरी चुप्पी रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई रश रहेगा, क्या कोई जल्दीबाजी रहेगी, क्या नहीं, सब कुछ स्थिर रहेगा, गाड़ियाँ रुकी रहेंगी, मशीनें बंद रहेंगी, और पूरे इस वातावरण में शांति छाई रहेगी। और यह बड़ा विचित्र सा लगेगा ना, यह क्षण कैसा लगेगा, बड़ा ही विचित्र सा लगेगा। चारों तरफ शांति, चारों तरफ स्थिरता, और इस पीरियड में क्या होगा बेटा, ह्यूमैनिटी, मानवता क्या होगा, प्रगाढ़ होती चली जाएगी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Beta, in this moment of inactivity, the fisherman would not be catching fish. बेटा, इस चुप्पी के क्षण में, इस शांति के क्षण में जो मछुआरे होंगे वो मछली मारने जाएंगे क्या? नहीं। अगर मछली मारने नहीं जाएंगे बेटा तो क्या होगा, हज़ारों लाखों की तादाद में मछलियों को जीवन दान मिलेगा, है ना। हैंस द व्हेल्स इन द सी विल बी सेफ ना, ये क्या सुरक्षित हो जाएंगी। द आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट्स दैट ह्यूमन बींग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। इस तरीके से जो हमारे नैसर्गिकता के भाग हैं ना, ये जो मछलियाँ हैं ये हमारे नेचर में हैं, और इस नेचर को हमारा ये जो मानव जाति है, मानव प्रजाति है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द मैन हु गैदर्स सॉल्ट विल बी एबल टू टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स फ्रॉम विच ही हैड नो टाइम अर्लियर। बेटा, नमक की खेती करने वाले, नमक की सफाई करने वाले लोग कुछ क्षण के लिए अगर रुकेंगे तो उन्हें उनका चोट दिखाई देगा बेटा। हाथ धो लेंगे तो कुछ देर के लिए वो जो रगड़ होगी उनके हाथ की वो दिखाई देगी, और वो जो दिखाई देगी तब वो उसका इलाज कराएंगे। दस बोथ नेचर एंड ह्यूमन विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर वुंड। बेटा, इस तरीके से नेचर यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों ही अपने उस घाव से उबर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ाते हैं हम पोएट्री। नाउ बेटा, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Beta, the poet now speaks of those who wage wars against humanity और environment, wars of all kind। अब कवि उन लोगों से गुहार लगा रहा है जो वॉर क्रिएट करते हैं, जो मानवता का हनन करते हैं, इस एनवायरनमेंट का हनन करते हैं, है ना। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ केमिकल और पॉइजनस गैसेस, war that bring death and destruction,
वॉर दैट लीव नॉन टू सेलिब्रेट विक्ट्री। बेटा वॉर क्या करता है, विध्वंस का कारण होता है वॉर। और ये जो केमिकल पॉइजनस गैसेस हैं, ये क्या करते हैं बेटा, बहुत छत बिच्छत करती हैं, मौत लाती हैं तादाद में, है ना। और किसी को भी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए, जब जब कोई गैसियस वॉर होगा, या बेटा कोई कोई भी जो वॉर मटेरियल है उसको गिरा दिया जाएगा, तो क्या होगा बेटा, कोई रहेगा ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, सब मर जाएंगे। तो विक्ट्री किसके ऊपर सेलिब्रेट करेगा बेटा, जो किसी के ऊपर राज्य करना है तो इस प्रकार का वार होगा, तो कौन बचेगा राज्य करने के लिए ना। ही सेज दैट सच मैन शुड स्टॉप देयर एक्टिविटी। कवि कहता है कि ऐसे लोग अपने इस प्रकार की एक्टिविटी को बंद कर दें। शेड देयर क्लोथ्स स्टेन्ड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये ऐसे लोग जिनका दामन पूरा खून से लथपथ है, जिनके कपड़े खून से सने हुए हैं, वो क्या करें, ये जो मानवता के मनुष्यों के खून से शरीर लथपथ वो कपड़ा, पुट ऑन न्यू क्लोथ एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स। वो अपने उस कपड़े को निकाल कर फेंक दो, नए कपड़े धारण करो और अपने भाइयों के साथ हाथ में हाथ डाल के कुछ देर चलो। बिल्ड ब्रदरहुड, भाईचारे की, बंधुत्व की भावना को बढ़ाओ। द पोइट implies that the war turns world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony। बेटा ये कहते हैं कवि, क्या कहते हैं कि देखो तुम लोग सभी लोग आपस में वैमनस्यता त्याग कर अपने चारों तरफ चौतरफा शांति लाओ, भाईचारे का प्रस्ताव रखो और इसे एडमायर करो, है ना। वी शैल प्रोसीड फर्दर नाउ। वॉट I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to talk with death. Beta, the poet makes a clarification that though he is advocating the needs for silence, his advice should not be confused with total inactivity. He does not want any association with the death. He says that life is meant to be lived. बेटा देखो क्या कहता है, कवि कहता है कि मेरे कहने का मतलब है, वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल चुप्पी मार के हाथ बांध के नहीं बैठ जाना है। वो उत्साह देता है कि बिल्कुल वो क्या कर रहा है, एडवाइस देता है बेटा, सलाह देता है कि देखो मेरे कहने से तुम कंफ्यूज्ड मत होना। टोटल इनएक्टिविटी तो बिल्कुल ही नहीं है मेरे कहने का मतलब, कि शांत रहो। ही डज़ नॉट वॉन्ट एनी एसोसिएशन विद डेथ, चूँकि वो नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो जिससे कि मृत्यु सन्मुख दिखाई पड़े। वो कहता है कि लाइफ, ये जीवन जो है ना, वो जीने के लिए मिला है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, है ना, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, है ना। द पोएट फर्दर एडवाइसेस, आगे पोएट एडवाइस करता है दैट पीपल शुड स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। लोगों को स्वार्थीपना अपना छोड़ देना चाहिए, केवल अपने ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। फॉर वन मोमेंट दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग। कुछ क्षण के लिए उन्हें अपने आप को स्थिर कर लेना चाहिए, अपनी एक्टिविटी को बंद कर लेना चाहिए, है ना।
What will happen from this? Beta, by this their lives, they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends or fulfilling their duties. बेटा, इनके कहने का मतलब कुछ क्षण के लिए अपने आप को रोक लो। अपने आप को रोक लोगे तभी तो मौत से आपका साक्षात्कार नहीं होगा। आप अपने आप को, अपने जीवन को एंड करने से बचा पाओगे, अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल कर पाओगे जब रहोगे तब ना। दैट ह्यूज साइलेंस विच विल अराइज फ्रॉम सच अ मोमेंट, इस मोमेंट से जो तुम्हारा चुप्पी, जो महान चुप्पी ये जो होगा, विल ओनली सर्व टू हेल्प द पीपल, वो क्या करेगा? केवल लोगों की मदद करेगा, लोगों की सहायता करेगा, लोगों की सेवा करेगा। इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट and overcome their sadness of falling to understand themselves। बेटा, कुछ क्षण के लिए रुकेंगे तभी तो अपनी खामियों का पता चलेगा, अपने उन चोटों का पता चलेगा जो लगा हुआ है, तभी तो आप उसका इलाज करा पाएंगे, तभी तो आप अपनी उन कमियों को दूर कर पाएंगे। पीपुल हैव बीन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ बाय देयर एक्टिविटी, अपने ही कर्तव्यों से लोग अपने ही जीवन को मृत्यु का भय दिखा देते हैं। दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर। बेटा, ये चुप्पी जो, ये शांति जो है वो क्या करेगी? लोगों में उत्साह फैलाएगी, लोगों की सज्ञानता को बढ़ाएगी और वो समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उनके जीवन में और बचाव किया जा सकता है। ठीक है। नाउ बेटा, द लास्ट स्टेंजा इज perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead or later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. Beta, what happens? The poet feels that the earth can enlighten us and guide us in the process of keeping quiet. बेटा, कवि का मानना है, कवि यह महसूस करता है कि ये जो धरती है ना बेटा, ये हमें गाइड कर सकती है, कैसे हमको चुप रहना है, कैसे हमें अपने आप को बचाना है। ही वॉन्ट्स अस टू ऑब्जर्व दैट देयर इज सम एक्टिविटी अंडर अपरेंट stillness. For instance, a seed appears to be dead, but huge fruit-bearing trees are born from such seeds, lying dead and here and there. Finally, the poet thinks that he has said what he intended to. Now, he wants us to keep quiet while he is counting to 12, after which he will leave. बेटा, कवि कहता है कि ये देखो, हमें धरती गाइड कर सकती है किस प्रकार से पद्धति हम अपनाएं चुप रहने के लिए। पैब्लो नेरूडा चाहते हैं क्या? कि हम इस धरती की एक्टिविटीज़ को ध्यानपूर्वक देखें, किस प्रकार से इसके गर्भ में जो बीज है, जो ज़मीन के अंदर बीज है, कुछ क्षण के लिए कैसे रहता है? बिल्कुल मृतक अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जब ये सीड उगता है, जब ये जगता है, तो क्या होता है? एक विशाल पेड़ के रूप में आता है और जिसमें फल लदे हुए होते हैं, है ना। अब इनसे इंस्पिरेशन लेने की, धरती क्या होती है? कुछ क्षण के लिए साफ़ कर दो तो उसके बाद बारिश होती है तो फिर से नए बीज उत्पन्न होते हैं, नए पौधे उत्पन्न होते हैं उन बीजों से जो मृत अवस्था में धरती के नीचे पड़े होते हैं, है ना। और धरती फिर से हरी भरी हो जाती है ना। तो कवि इंस्पायर कर रहा है कि हम लोग धरती की एक्टिविटी को देखें। फाइनली, आखिरकार, द पोएट थिंक्स
पोएट सोचता है दैट ही हैज़ सेड वॉट ही इंटेंडेड टू, जो कुछ भी उसके अंतरात्मा ने कहा उसने हम सभी को इंस्पायर कर दिया, कह दिया। अब वो कहता है नाउ ही वॉन्ट्स अस, अब वो हमसे चाहता है टू कीप क्वाइट, चुप रहने की, चुप्पी के लिए, स्टिलनेस के लिए। वाइल इज काउंटिंग टू 12 आफ्टर विच ही विल लीव, मैं 1 से लेकर 12 तक गिनूंगा, आप स्थिर हो जाओ, आप भी 1 से लेकर 12 तक गिन के बिल्कुल चुप हो जाओ। बेटा इन दिस वे वी हैव एंडेड दिस पोएट्री। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग related to this poetry. Okay, then have a nice day.